हमने लड़कियों को पढ़ाना सिखा दिया, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बोलते हैं, राइट। उसके साथ साथ वी नीड टू मेक श्योर दैट वी मेक देम मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन ऑल फ्रंट्स। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टीचिंग द गर्ल्स दिस, वी नीड टू टीच द बॉयज दैट बॉयज यू आल्सो नीड टू चेंज योर माइंडसेट। जो आपके फादर के टाइम में होता था वो अब नहीं होता है, right? What your mother did, that's not happening now. Things have changed. Everything around us has changed. So why to stay with the same mindset जो अब से 50 years पहले या 100 years पहले होता था? Things have changed a lot. True. So why not to change our mindset also? Why not to grow our kids together? That's what I keep on saying. When I meet people, I say कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, it's no more कि you want a boy only or you want a girl only. I think it has become we're in the same platform now. Girls are doing equally well, right? Boys have always been amazing. So why not to grow them with the same values? Why different values? Right? So the moment we grow them with the same values, with the same teaching, same learning, they both will grow up and have the same kind of a mindset rather than having a different mindset. हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लोगों के बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। जिंदगी में लोगों ने कहा कि ट्रांजिशन का फेज है, अब समाज बदल रहा है। तो आज बात करेंगे समाज के बारे में भी कि समाज में रिश्ते कैसे बदल रहे हैं, समाज में रिश्ते चल कैसे रहे हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ की रिलेशनशिप आइडियल कैसी होती है, कैसे एक इंसान को कैसे एक पेरेंटिंग के थ्रू बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक लाइफ कोच से, उसकी जर्नी के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में भी। टुडे वी हैव एकता राणा जी हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन 25 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आज बात रिलेशनशिप की होगी, उनकी लाइफ के बारे में होगी, आपकी लाइफ के बारे में होगी। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। एकता राणा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। हाउ आर यू? Thank you so much and it's amazing to talk with you. Amazing. एकता मैम, आप एक लाइफ कोच हैं, राइट। आज बात करते हैं सफ़र की, और सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों लगा कि लाइफ कोच बनना है। तो अगर सफ़र की बात करनी हो तो कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र? I started my career as a trainer and in 2013 I did my life coach certification. And when I did that, I started with coaching employees. I took executive coaching, and that's where I realized that people need someone to talk to. When we train people, it's like a group of people. You can't open up. You can't do like you can't have that 101 and you can't pour your heart out, right? You need someone to pour your heart out. And this was in 2013 when there was an incident when one of the employees, he was really depressed, right? Even though he was performing well and he was one of the best performers, best employees, still he walked up to me and he said, "Okay, ma'am, I want to speak to you. I want to confess something and I want you to coach me. I want to come out of the depression that I'm going through." And the kind of depression that he was going through, he was like, "Ma'am, if you don't coach me, I'll commit suicide." Oh my God, seriously? It was that bad. That's where I realized कि जो ऊपर से दिखता है कई बार वो नहीं होता. That is not the reality, right? हम ऊपर से देखते हैं that there are employees who are happy. हम ऊपर से देखते हैं there are people who are happy, there who are smiling, right? But उनके अंदर actually क्या चल रहा है we don't know. So today also when I speak to my team or I speak to the people around me who approach me, I tell them that please be empathetic towards people, right? Because that because she is working. Maybe she's coming home late. Maybe she's sleeping late. She wants to get up in the morning and help the kids go to school rather than getting into the kitchen and cooking food. Situations have changed. So when the situation has changed, how can you say कि मेरी mom जो पहले करती थी तो मेरी wife को भी वही करना चाहिए? नहीं हो सकता ना, right? So we have to change with time. That is important. सबके वैल्यूज़ को भी हमको उसी हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। एकता मैम, जैसे पहले हम हिस्ट्री में बात करते थे, बिफोर मेडिवल एरा, आफ्टर मेडिवल एरा, तो अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं बिफोर कोविड वर्सेस आफ्टर कोविड। पहले जिस तरीके से आप कोचिंग देती थी बिफोर कोविड, क्या कुछ अलग सिनेरियो थे, कुछ अलग प्रॉब्लम्स हुआ करती थी? आफ्टर कोविड ये ज़्यादा चीज़ें रैम्पेंट हो गई हैं, ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं? Yes, after COVID, I think people have become more open about expressing themselves. पहले नहीं होता था.
पहले कहीं लगता था कि यार मैं लाइफ कोच के पास क्यों जाऊं, मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी को क्यों बताऊं, और हम्म, अगर मैंने बता दिए तो लोग मुझे वीक समझेंगे। हम्म, अब ऐसा नहीं होता है। पीपल कम आउट विद देयर प्रॉब्लम्स, पीपल कम आउट एंड दे पोर देयर हार्ट आउट, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पीपल नो कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, हम्म, पीपल नो कि उनके सॉल्यूशंस भी क्या है। हम्म, इट्स जस्ट दैट यू आर अ बिट कंफ्यूज एंड यू डोंट नो हाउ टू टेक इट अप, यू डोंट नो कि आपके में शायद उतनी हिम्मत नहीं है टू एक्चुअली एक्नॉलेज इट कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यू वांट समवन टू ना मे बी वैलिडेट कि मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। सो द कोच व्हाट आई डू इज हम्म, आई आस्क देम ओनली व्हाट डू यू वांट टू डू। They tell me A, B, C, D scenarios. ओके, I said, okay, हम्म, choose the scenario that you want to choose. हम्म, So if he says, I want to choose scenario A, right? I said, okay, A scenario, what is the timeline that you want to set for yourself? What do you want to do? हम्म, We still want to keep time in hand, saying that, okay, by chance A does not work, we still have the other three the options as other well. three options available, which is there. We will look at those options also. But कम से कम हिम्मत तो करो करने की. तो यानी कि लोग अब कम आउट कर लेते हैं बहुत People have इजीली, come पता। out. People have come out now. People have come out now. I've got rather students who have come out now. Right? They have come out now. They have come out openly. They have issues. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं who are not able to pour their heart out, who are not able to tell their parents anything. हम्म, I think वही ना बचपन में हम सिखा देते हैं कि बड़ों ने जो बोला है मानना चाहिए, पेरेंट्स ने जो बोलना मानना चाहिए, पेरेंट्स ही आपके लिए बिल्कुल सही सोच सकते हैं, हम्म, राइट? पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बट कहीं आई थिंक अगर हमने बच्चों को वोटिंग राइट्स दिए हैं तो कम से कम अपने लाइफ के राइट्स तो दे दें कि यार देते हैं अपने एग्जैक्टली। लाइफ के बारे में भी कुछ सोच सकते हो आप, हम्म, right? But parents just want to hold them back. So a lot of kids have come back saying that, "Ma'am, we want to do this." There have been issues. There have been problems where, like one of the examples, I would say that one of my daughter was in college, right? And one of her friends, she went through a big problem. She said, "मैं घर नहीं जाऊँगी. I cannot tell my parents मैं घर नहीं जाऊँगी. मैं कहीं भी रह लूँगी. मैं कुछ भी कर लूँगी. I had nothing doing. Please come home. You stay with me till you get clarity, till you think you really want to go and talk to your mom about it. You're going to come and stay with me. You're not going anywhere." She came and stayed with me for 3-4 days. मैंने आराम से मतलब I molded her प्यार से. Finally, after 4th day, she had the strength to go back and tell her mom exactly what all had happened. But वही है ना कि बच्चों को हिम्मत चाहिए होती है. देखो पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, बट कहीं हम लोगों ने आई थिंक ना वो डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, एंड ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, दिस इज द प्रॉब्लम एरिया. वी देन दैट्स वेयर वी नीड समवन जहाँ पे यू कैन ट्रस्ट समवन, यू कैन देयर इज समवन टू हैंड होल्ड यू, देयर इज समवन टू से कि ओके बेटा डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन. तो क्या हुआ, फेल हो गए, गिर गए, प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई, दैट्स फाइन. हम सब ने गलतियाँ करी लाइफ में, राइट? आपने करी होगी, मैंने करी होगी, बट ठीक है हम शायद गलती करके ही सीखते हैं. दैट्स हाउ वी लर्न. बट ये जो जनरेशन गैप हुआ है और ये इतना वाइड होता जा रहा है, कैसे कम होगा ये? That's what I'm saying. We will have to change our mindset. Mindset change is required. Things around us have changed. The way I grew up, right? नहीं थे इतनी demands, नहीं थे इतना exposure. Now exposure is there. Now competition is there. बच्चों के ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा. एक तमाम रिसेंटली अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट से बात करी, दे आर टिपिकल जेंजी. मेजरली जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, दे हेट देयर पेरेंट्स टू दिस मच एक्सटेंट कि अगर मैं सवाल भी करता हूँ तो कि मम्मी अच्छी है पापा अच्छे, बोलते दोनों बुरे, हमें कोई नहीं चाहिए. ये जो माइंडसेट आया है आज की जेंजी जनरेशन में कि अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत हो गई है, क्यों हुई इन्हें नफरत? क्या हमारी गलती भी है? देखिए ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है. जैसे हम सही ना कि हम जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जनरेशन गैप तो है ही है, ठीक है, पर उसके अलावा लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस हैव चेंज्ड. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. अभी भी हम अगर वो 50 ईयर्स एंड 100 ईयर्स पहले जो होता था अगर वो ही लेके बैठे रहेंगे तो सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही नहीं, अपने आसपास के सब लोगों से रिलेशनशिप तोड़ देंगे. बच्चे नहीं जाके बताना चाहते अपने पेरेंट्स को, दे डोंट वांट टू टेल देम. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट्स वेयर लकीली माय रिलेशनशिप विद माय किड्स हैव बीन सच दैट मेरे बच्चे ही नहीं, उनके फ्रेंड्स भी आके मुझे बताते हैं. दे कम एंड टेल मी दैट आंटी दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू डू.
And I'm like, okay, hold on. Then you have to guide them. Like, so but then I think that's what I'm saying, that parents को कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा. बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया. लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरा बच्चा उस अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे बच्चे ने इतने अवार्ड्स लिए. I think this is what we talk about these days. This is what parents talk about these days. And I tell them, please slow down. Let your kids grow up. Don't put so much of pressure on them. नहीं करा तो नहीं करा यार, फेल हो गए तो हो गए, फेल होके भी वो सीखेंगे. अगर फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम उनको लगेगा यार फेल हो गए, चलो और कुछ नहीं. तो आई टेल देम कि ठीक है, पता तो चल गया क्वेश्चंस कैसे आते हैं, right? At least you have a sample paper. That's true. Next time you will do better in that sample paper, right? Why not to learn from that? बट मुझे ऐसा लगता है हमने सक्सेस और फेलियर के पैरामीटर्स भी कुछ अलग कर रखे हैं ना. इस वजह से पेरेंट्स को भी ना चाहते हुए उसी क्राइटेरिया में फिट इन होना पड़ता है. गलती उनकी भी नहीं है शायद. देखिए पेरेंट्स, आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स, आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट, राइट? इवन आई वुड लव माई किड्स टू डू वेल. And I've always dreamt of my kids to do well. I'm kind of a person who will do everything for my parents, give them best of education, best of anything that they want on earth. Okay. Right? But then again, how to motivate them, how to put them on track is important. Expectations parents के हैं and they're genuine. They're not wrong. They want the best for the kids, right? But then उसको अपने बच्चों को बोलना कैसे है, बच्चों से एक्सपेक्ट कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है. वो बहुत ज़रूरी है. आप डंडा मार के काम नहीं करा सकते. इट हैज़ टू बी स्टिक एंड कैरेट टुगेदर. अप्रिशिएट भी करते रहो और साइड बाय साइड बताते भी रहो कि ये चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती हैं. अगर आप सिर्फ डंडा मारते रहोगे ना तो बच्चा दूर चले जाएगा आपके, कि यार जब भी इनके साथ बैठो ना तो ये थोड़ा लेक्चर ही देते रहते हैं. ठीक है, बच्चा द किड विल गो अवे. अगर आप बहुत ज़्यादा कैरेट ही देते रहोगे ना तो बच्चा विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. Right, so it has to be a mix of both. It has to be carrot and it has to be stick together. Exactly. That's how it works. एक दो सिचुएशन हैंडल करते हैं. एक था मैम, फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्या चांसेस हैं कि वो बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे उसके पेरेंट्स थे, या ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ अलग भी हो सकता है? देखिए, I have had cases, okay, and I have spoken to few individuals about it, and I'll give you a real life experience that I've had. Yes. Right. So I know a family, okay, where father is well educated, family is well educated, okay, a very good family, known family, working in a very good organization, very good position, everything is absolutely fine, right? बाहर से देखने वालों को लगता है परफेक्ट फैमिली है, नथिंग कैन बी रॉन्ग इन दिस फैमिली, राइट? हंसता है, खेलता है, इट्स एग्जाम्पल फैमिली. बट घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, राइट? एंड द वे आई सेड कि 50 साल पहले जो होता था और 100 साल पहले जो होता था ज़रूरी नहीं है वो भी अभी होए. थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? बट इफ़ यू हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर वाइफ, देन इट इज़ रॉन्ग. नाउ दिस पर्सन हूम आई एम टॉकिंग अबाउट, ही हैज़ गॉट 2 daughters, okay? He got his elder daughter married and he got his younger daughter married. Elder daughter who's got married is living in a family, again married, arranged marriage, as per father's choice. Both the daughters got married as per the father's choice. However, the husband is toxic, okay? He does not respect her, does not treat her well. Now because husband treat नहीं करता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं ट्रीट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो एक वाइफ की इज्जत जो होती है वो एक हस्बैंड के हाथ में होती है. द वे अ हस्बैंड ट्रीट्स अ वाइफ, दैट्स हाउ द अदर फैमिली मेम्बर्स विल ट्रीट द वाइफ. एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड पॉइंट. ओके, सो इफ अ हस्बैंड गिव्स अ लीवे कि भैया मैं अपनी वाइफ से बात नहीं करता, मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, ठीक है ना, शादी हो गई, ठीक है, घर का काम करेगी, बच्चे संभालेगी, एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस पूरे करेगी, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी वैसे ही बिहेव करेंगे. एग्जैक्टली. Right? So this elder daughter has got married to this kind of a family. Now the problem is that that's what she's seen her mother doing. Her mother had the same kind of life. Her father, who is a well-known person in the society, treats the mother the same way. Now this elder daughter has seen
the mother being treated the same way, so she feels कि शायद औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है. That's how we are. We are supposed to listen to our husbands. We are supposed to do whatever our husbands say. ठीक है ना. That's it. Relationship क्या है वो तो दरवाजे के अंदर है ना, वो किसी को नहीं पता. Right? Now there's the second daughter who again got married as per father's choice. She went to a family. Again, it was a toxic family. Okay. Husband abused, in-laws abused. She had a kid. She was pregnant second time when she decided to walk out of her husband's house. She walked out of her husband's house. She came back to her father, thinking that father will support her. Instead, the father pushed her out of the house. Seriously. Father threw her out of the house, saying that you go back to that house, you live with your husband the way you want to live, whatever you want to do, but you will not stay in my house. Why? What? Why? The problem is, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कि मेरी बेटी अपने हस्बैंड को छोड़ के वापस मेरे पास आ गई है. That is the problem. Now this girl, I think she is brave enough because she is the one whom I've been speaking to, okay? And I'm really in awe of her, okay? She said कि ma'am, I walked out of my problem, she managed everything alone. That's all. Okay, now she has 2 sons. She's growing both the sons all by herself, fighting with her husbands, fighting with her family, no support from anyone. And one thing she says is, I will make sure that both the sons are not like my husband, are not like their grandfather. Oh my God. Okay, so ये एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली में सब कुछ हो रहा है. पेरेंट्स ने जो सिखाया, बेटियों ने जो पेरेंट्स के घर में देखा, वही बड़ी बेटी ने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ में. दूसरी बेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया लाइफ में. दूसरी बेटी said, no, I have to change. I have to break the chain somewhere. She is trying to break the chain. She is saying कि no, my sons will not be like this. Right? जो बड़ी बहन है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये तो होता ही है ना, मम्मी भी तो ऐसे सहन करती है. एक औरत की जिंदगी में एक औरत की जिंदगी में ऐसे ही होता है. सो जो भी आपके घर में होता है, जो आपके फैमिली में होता है, आई फील कि 2 किस्म के लोग निकल के आते हैं. एक जो सहन कर लेंगे और एक जो रिबेलियस बन जाएंगे. चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है. आपने अपने आप को उसी रास्ते पे चलाना है जो आपने देखा है लोग चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपने वो चेन तोड़ के दूसरे रास्ते में जाना है एंड एक बेटर लाइफ चूज करना है. So when I have such stories, when I meet such people in my life, I feel I want to stand by them. And that's where, as a life coach, I stand. I'm happy I'm able to be there with them. I'm happy if they even come and tell me, okay, ma'am, at least I can tell you because I cannot tell anyone else. Exactly. There's no one. हम लोग कहते हैं पेरेंट्स खड़े होते हैं, मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है. मेरे पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया, और जब उसे घर से बाहर निकाल दिया उसके सारी चीज़ें जला दी. ठीक है, सो यू फील सैड बट देन यू फील प्राउड ऑफ सच पीपल. कम से कम वो आज अगर अपने लिए खड़ी हो पाई है, कल वो अपने बच्चों के लिए खड़े हो पाएगी. जो मदर सफ़र कर रही है, क्योंकि वो ना अपने लिए खड़े हो पाई, ये जानते हुए कि बेटी सफ़र कर रही है, वो अपनी बेटियों के लिए भी नहीं खड़ी हो पा रही है. राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. कि अगर आपको लगता है गलत है, गलत मीन्स गलत है, आप कहीं तो उस चेन को तोड़ो ना. या अगर आप या तो अपने लिए खड़े हो, और अपने लिए नहीं खड़े हो पाए तो बच्चों के लिए क्या खड़े होगे, तो बच्चे भी वैसे सफ़र करेंगे. एक ना मैम, ये मैटर है अरेंज मैरिज का. आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें एक कपल की लव मैरिज हुई, लेकिन शादी के 10 से 15 दिन में नहीं हुए थे कि उनको ऐसा लगा कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए. वो तो 4-5 साल से रिलेशनशिप में थे. ऐसा क्या हुआ कि उन्हें शादी के बाद रियलाइज होता है कि हमें साथ रहना ही नहीं चाहिए? देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद there's a huge change which happens. Okay, so when the two mature people who are in a relationship, but they are not married, okay, they are in a relationship, तो आप
को जो टाइम चाहिए होता है, जितना टाइम चाहिए होता है, आपको पता है वो लिमिटेड है, आप एक दूसरे के लिए निकाल रहे हो, एंड यू आर प्रीटी हैप्पी विद दैट, राइट? सो इफ आई से, टेक एग्जांपल, suppose a couple was in college before, then they started working also. All these 4 years, 5 years, 10 years, they have been together, they have sailed through the journey together, right? But the moment they get married, their life changes. Because अब क्या है कि expectation सिर्फ आप दोनों की नहीं है, expectations पूरी family की है, ठीक है, right? That is the problem area. क्योंकि पहले सिर्फ आप दोनों का रिक्वायरमेंट था, जितना रिक्वायरमेंट था, जितने इमोशनल बॉन्डिंग थी, यू मैनेज्ड इट, राइट? द बॉय फील्स कि आई कैन अंडरस्टैंड द गर्ल, द स्ट्रगल दैट शी इज गोइंग थ्रू, द गर्ल फील्स आई कैन अंडरस्टैंड द बॉय, द स्ट्रगल दैट ही इज गोइंग थ्रू. That's where I feel the values of a family come in place. You have to give time and space to the newly married couple to grow together. अल्टीमेटली हमारे देश में क्या होता है, ईस्टर्न थोड़े पार्ट्स को छोड़ के मैक्सिमम जगहों में द गर्ल लीव्स हर फैमिली एंड कम्स टू द बॉयज फैमिली, विच मीन्स शी इज द न्यू कमर इन द फैमिली. So it's the husband's responsibility again. I still don't blame the in-laws or the extended family for this. I still would blame a husband for this, right? Because he is the one who has got married. He is the one who has got the girl home. He is the one who has to make his family understand, support, and make the girl trust everyone around her. She is the one who has left everything, her family, her friends, her room, everything that she was comfortable with. A man has not left. A man is still in his room. He has still his own clothes, his people, his the way kitchen में काम होता था, the family life, जो भी आपके घर के values हैं, वो तो आपके घर के हैं ना. But the moment a girl moves to a new house, she is expected to change from day one, which is not possible. अगर 20 years या 25, 30 years, the girl has been born and brought up in a particular environment, a particular way, she also needs time to change. She also needs time to accept. And it's a husband's role to make her feel comfortable and change. It's a husband's role to make the people around her, make her feel comfortable in the house and acceptable in the house. That's where the problem is. आपने वो खबर सुनी कि एक कपल अपने हनीमून पे जाना चाहता था, बट वो फैमिलीज पूरी फैमिली इकट्ठे चले गए. गए. Have you given time to the couple to grow together? No, you didn't. And that's what happens in Indian families actually. आप हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे बैठ के बात तक नहीं करने दोगे. एंड इट्स नॉट अबाउट न्यूली मैरिड कपल. आई हैव सीन दिस एंड आई हैव एक्चुअली इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ लेडीज वेयर दे आर मैरिड 5 years, 10 years, 15 years, सेम प्रॉब्लम, 20 years, सिमिलर प्रॉब्लम. गॉड. दे से कि हस्बैंड जाता है सुबह, शाम को मैं वेट करती हूँ कि शायद हस्बैंड आके बात करेगा. ही हैज़ नो टाइम. पेरेंट्स के सामने वो बात तक नहीं करता है. पेरेंट्स के सामने वो वाइफ को देखता भी नहीं है. वाइफ इज लाइक अ सेकेंडरी आइडेंटिटी इन द हाउस. है तो है, नहीं है तो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. एंड ये न्यूली मैरिड नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट इज देयर इन द सोसाइटी. एंड ऐसे उसमें अगर रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर इज इमोशनल बॉन्डिंग व्हिच इज देयर. एग्जैक्टली, यस. देयर इज नो इमोशनल बॉन्डिंग व्हिच इज देयर. व्हाट आर यू टीचिंग योर वाइफ? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर वाइफ, योर फैमिली विल नॉट रिस्पेक्ट योर वाइफ. You have to give space to husband and wife to grow together, the family to grow together. एक तमाम बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब अपना पार्टनर चूज करते हैं आपके हिसाब से? देखिए, one thing which is very important when they choose their partner is to understand the compatibility part. हम जनरली क्या देखते हैं? हम देखते हैं अच्छा स्मार्ट है, हैंडसम है ना, tall, dark, handsome guy is there, okay, we want to get married. But that's not the fact. वो जो शादी है, वो जो partnership है, that will not last long. True, yes. What will last long is that the compatibility which is there. Compatibility does not mean that two people have to be alike. Two people can be different also. हो सकता है उसे इडली डोसा पसंद हो सकता है उसे छोले भटूरे पसंद हो. But then still, they both are ready to live together because two different people always make a good partner. Exactly, right? Yes. And that is something which is very important. You have to understand the other person. You have to have that mindset to understand the other person. You need to give space to the other person. You can't have expectations one side. ठीक है. एक तमाम मार्केट में एक नई टर्मिनोलॉजी आई है which is like silent divorce. क्या होता है ये silent divorce?
देखिए शादी तो सब करते हैं, हम्म, राइट? एंड when you live with a partner, you have expectations which are there. yes, A wife who is not working, Hmm. let's take her example. Hmm. Okay, she gets up in the morning, she takes care of her kids, the Hmm. family, the requirements, expectations, extended family, everything. The only thing she needs is a emotional support from her husband. yes, Now the husband who leaves home in the morning at 7:30, 8 o'clock, goes to office. I'm sure he has a difficult time in office yes, because he's also overloaded with work. There are a lot of expectations in office, Hmm. right? You want to do that. So husband is logging in office. By the time evening he comes back at 7, 7:30. Hmm. I know people now, Hmm. especially COVID के बाद, Hmm. right? People have been actually slogging a lot because शायद वो आदत पड़ गई है काम करने ठीक है, की. पहले घर में जब काम घर से बैठ के काम कर रहे होते थे तो कोई टाइमलाइन नहीं होता नहीं था, होता था, एग्जैक्टली, यस, राइट? रात को 10 बजे भी काम कर रहे होते थे, अर्ली मॉर्निंग भी काम कर रहे होते थे. सो दैट एक्सपेक्टेशन इज स्टिल देयर दैट यू शुड बी अवेलेबल. ठीक है, And the more the husbands grow in their career, expectations and like pressure certainly increases. However, they should not deny the fact that they are still married. They have a family who's waiting at home. True. They have kids who are waiting at exactly, home. yes, They come back home at 8 o'clock, they come back home at 9 o'clock. Naturally, they are dead tired. They come back home, खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे. जी, Now, what is happening with the lady out there? The lady has no emotional connect. और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक दिन, 10 सालों दिन, तक चलता हफ्ता, साल, ये this is जिंदगी। continuous. So what is happening is slowly the lady has stopped expecting anything from her husband. Kids have stopped expecting anything from her husband, ठीक है, right? And that is where the problem starts. Okay. It's an emotional drift which is there. A husband has a different life, a wife starts a different life. She disconnects herself. तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों प्रेशर कर दिया उस वाइफ के ऊपर कि वो डिस्कनेक्ट हो गई. नाउ व्हेन आफ्टर अ ईयर व्हेन अ हस्बैंड वांट्स टू कम बैक एंड ही फील्स माय वाइफ इज नॉट अवेलेबल, हाउ डू यू थिंक द वाइफ विल बी अवेलेबल व्हेन यू हैव डिस्कनेक्टेड योरसेल्फ सो मच फ्रॉम द वाइफ, व्हेन यू डोंट हैव टाइम फॉर हर, यू हैव टाइम फॉर एवरीवन अराउंड यू, राइट? जो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, आपको लगता है कि चलो बाकी फैमिली मेंबर्स को दे दे. वाइफ इज स्टिल इग्नोर्ड, राइट? बिकॉज ही फील्स दैट वाइफ शुड अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, राइट? But then that does not happen. It's an emotional disconnect, and that's what silent divorce is, where we are not connected at all. दुनिया वालों को देखने के लिए लगता होगा कि हाँ भैया बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहा है, but in reality maybe they are sleeping in different beds, different rooms. They are not connected. They don't know what is the problem, what is there between them. ठीक है, एकता मैम, अगर मुझे आपसे बहुत क्रिस्प में जानना हो, एक ट्रस्ट की क्या रेलेवेंस है एक अच्छे रिलेशनशिप में? बहुत ज़्यादा. Without a trust, there is no relationship. Without a trust, there is No no relationship. ठीक You है, can be a very good husband, but what if you cheat your wife and you have broken the relationship? तो क्या बचा Right. तो रिलेशनशिप? फिर क्या बचा? एग्जैक्टली. एकता मैम, अगर ऑडियंस में से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे क्लासेस लेना चाहता है, आपसे कोचिंग लेना चाहता है, किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकता है? देखिए मेरा वेबसाइट है which is there. They can connect with me directly also. They can send me a message also, and I'm available. Okay. And I'll be more than happy to help them out. Basically, they need to pour their heart out. I only feel that please अपने emotions दबा के मत रखो. You need to pour them out. Exactly. Come out of it. Come out of it. लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए भी यही मैसेज रहेगा. Absolutely. एकता मैम, आई स्टिल डू हैव 1000+ क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम क्रंच रहता है. विल बी वांटिंग यू अगेन. आप आए दोबारा से एंड डिस्कशन करें, बिकॉज़ देयर आर thousands of questions जो अभी भी हम डिस्कशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, एकता मैम. So